Hello students, welcome. I am Jyoti Rajput and today we are going to study a new chapter of 12th biology, that is reproduction in lower and higher plants. Reproduction is very much important. Why? Because it maintains the species, it also maintains the continuity of the species. So, reproduction is only being seen if the parents they reproduce. So, reproduction, this type of process, it takes place only because of the parents. Now, the reproduction, it may be a sexual type of reproduction or the sexual type of reproduction. So first, we'll study about the asexual type of reproduction. In this, we have taken a unicellular organism. So, if we see this structure, we can see the nucleus, it is present. And first, the nucleus it divides, and later, as the nucleus it is completely divided, that is karyokinesis is completely divided, then it give here the further process that is cytokinesis. In the cytokinesis, the complete division of the nucleus takes place. The In asexual reproduction, first of all, there is not at all formation of gametes, nor there is fusion of gametes. So, as you can see, there is only one parent is required. So the offsprings which are going to be produced, they are also going to be identical like that of their parent. So the offsprings which they are going to be always morphologically and identically same like that of parent. तो यहाँ पर हम ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट हैं हम बुला सकते हैं ये जो पेरेंट्स के क्लोन ही हैं मतलब कि जेनेटिक मटेरियल सेम है मॉर्फोलॉजी सेम है तो यहाँ पर ये पेरेंट्स के ही तरह दिखाई देंगे. So, the next type of asexual reproduction which we will study is fragmentation. In this fragmentation, we have taken an example of a Spirogara, जो कि एक multicellular organism है. यहाँ पर अगर किसी भी reason के वजह से अगर यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन हो जाता है स्पायरोगायरा का तो अगर दो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स अगर दो टाइप के डिवीजन हो रहे हैं मतलब सेपरेशन हो रहा है तो टोटल 3 फ्रैगमेंट्स नजर आएंगे और यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स है एज दे आर गोइंग टू ग्रो दे विल गिव राइज टू द here nearly about three type of individuals which are going to produce. तो यहाँ पर fragmentation से ही new individuals का formation हो रहा है. So here we have taken an example of a Spirogyra. और यहाँ पर ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन नजर आ रहा है. Next type of asexual reproduction is the budding. Here we have taken an example of the yeast that is a multicellular fungi. So यहाँ पर ये initial process में आपको एक छोटा bud नजर आएगा. Here you can see a small bud and in initial phase it is attached to the parent body so that it can uptake all the nutrition from the parent body और जैसे ही इसका पूरा development हो जाता है it gets detaches from the parent body and lives an independent life. So यहाँ पर हमने example लिया है yeast का जहाँ पर here you can see that the first nuclear division is going to take place that is karyokinesis and then the cytoplasmic division takes place. तो कहीं कहीं जगह पे आपको पूरी chain नजर आएगी यहाँ पर bird की पूरी chain नजर आएगी. So here in this we have taken an example of unicellular yeast और ये एक तरीके का reproduction है तो जब भी favorable conditions होंगी तो यहाँ पर budding type का sexual reproduction yeast में नजर आएगा जो कि एक तरीके की outgrowth नजर आएगी किसी भी yeast में और बाद में ये separate हो जाएंगे और new individual की तरह survive करेंगे. Next type of asexual reproduction is the spore formation.
स्पोर फॉर्मेशन हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है क्लैमिडोमोनास का. यहाँ पर इफ वी सी द बॉडी पैरेंट बॉडी ऑफ द क्लैमिडोमोनास, इट इज गिविंग राइज टू मैनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो स्पोर्स हैं ये मोटाइल हैं बिकॉज दे आर हैविंग टू फ्लैजिला. तो हम इनको बायफ्लैजिलेटेड लाइक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. सो ये जो स्पोर्स हैं ये बायफ्लैजिलेटेड हैं. एंड here these are also the spores of the chlamydomonas. और ये हमारे क्लैमिडोमोनास हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. और यहाँ पर ये जूस्पोर्स बुलाएंगे हम इनको क्योंकि these are having flagella present in it. So altogether we can see these are motile zoospores which will grow and a new individual arises from them. Next type of asexual reproduction is binary fission. Here we have taken an example of amoeba and parameecium. यहाँ पर ये जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. एंड हियर दिस इज अ पैरामीशियम व्हिच इज अ स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म. अमीबा में एक ही न्यूक्लियस नजर आता है और पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस नजर आएंगे. दैट इज द मैक्रो न्यूक्लियस एंड द माइक्रो न्यूक्लियस. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द अमीबा. यहाँ पर ये जो अमीबा है फर्स्ट इट इज गोइंग टू डू कैरियोकाइनेसिस जहाँ पर आपको दो न्यूक्लियर डिवीजन नजर आएंगे. और फिर कंप्लीट जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नजर आएगा. और फिर यहाँ पर ऑल टुगेदर देयर आर टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस. सो यहाँ पर चौथे स्टेप्स में पूरे कंप्लीट दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो यहाँ पर एक पेरेंट से यहाँ पर दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. वो यहाँ पर जिस तरीके का फिजन है मतलब हम इसको बाइनरी फिजन बुलाते हैं. लेकिन यहाँ पर हियर द डिविजन इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन. कोई भी प्लेन से यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो सकता है या तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो सकता है. कोई भी प्लेन हो सकता है कोई भी एक्सेस हो सकता है. तो हम इसको बुलाएंगे सिंपल बाइनरी फिजन. ओके. सो हियर नेक्स्ट अब आता है पैरामीशियम के बारे में. ये जो पैरामीशियम है here it is going to do a kind of longitudinal binary fission. मतलब यहाँ पर अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं here in this structure first if we see the paramecium structure, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन नजर आएगा न्यूक्लियस में जिसके वजह से कंप्लीट डिवीजन नजर आएगा दोनों ही न्यूक्लियस में. और इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा और फिर धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा. और फिर यहाँ पर दो पैरामीशियम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. टू डॉटर पैरामीशियम्स दे आर बीन फॉर्म्ड. सो यहाँ पर जो डिवीजन नजर आ रहा है ट्रांसवर्स डिवीजन है तो हम इसको बुलाएंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. बट इट इज अ काइंड ऑफ अ बाइनरी फिजन काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आ जाता है जेम्यूल फॉर्मेशन जो कि हमको नजर आएगा स्पंज में. ये जेम्यूल्स हैं ओके विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पंज. यहाँ पर here we have taken the diagram of a sponge जिसके इनर लेयर के अंदर यहाँ पर जेम्यूल्स फॉर्म होंगे और फिर जैसे जेम्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे they come outside the sponge and in the water they can germinate and again form a new sponge in the water. तो यहाँ पर ये भी सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है लेकिन by the help of the gemule formation. नेक्स्ट इज अबाउट द कॉनिडिया फॉर्मेशन जो कि हमें नजर आएगा फंगस में दैट इज इन द पेनिसिलियम. सो यहाँ पर हियर वी हैव टेकन द पेनिसिलियम डायग्राम एंड हियर यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉनिडिया का फॉर्मेशन नजर आ रहा है. सो ये द कॉनिडिया दे here spread because of the air and here as they are spread so again they can germinate in any moist condition. जो भी कंडीशन होनी चाहिए मॉइस्ट होनी चाहिए तभी ये ग्रो कर पाएंगे. तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर द हेल्प ऑफ कॉनिडिया फॉर्मेशन द पेनिसिलियम लाइक फंजा इट इज गोइंग टू डू द रिप्रोडक्शन. और ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अब यहाँ पर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हम देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कोई भी plant का part any part of the plant body it can convert it can form into a new plant. मतलब यहाँ पर हमें कोई seed की ज़रूरत नहीं है. We don't require seed, we just require a part of the plant which is going to produce a new plant body. तो यहाँ पर हम कोई भी plant का part ले सकते हैं. We can take root, we can take shoot, we can take also the
लीव ऑल्सो, स्टेम ऑल्सो, राइट. सो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेने वाले हैं रूट का, जहाँ पर हियर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ डालिया. सो हियर इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डालिया, यहाँ पर ये कंप्लीट रूट ही है. सो रूट के ऊपर कोई बर्ड होना इम्पोर्टेंट है, और अगर बर्ड प्रेजेंट है तो ही ए न्यू plant का formation हो पाएगा. So here a new plant is formed by the help of the root. Same the example is of the sweet potato. यहाँ पर हमने sweet potato लिया है, जिनके ऊपर nodes होना important है, जिसके ऊपर buds होना important है, तभी यहाँ पर a new individual is going to takes place. So ये हमने दो examples लिए हैं here of the root vegetative propagation by the help of root. Second is the example of the leaf bryophyllum. If we see the structure of the bryophyllum, here the structure, that is a bryophyllum leaf, they are having a kind of crenate टाइप ऑफ मार्जिन्स, और इन्हीं क्रिनेट टाइप के मार्जिन्स में आपको नजर आएंगे बर्ड्स, और ये जो बर्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज फोलियार बर्ड्स. ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइलम, इट इज अ सक्यूलेंट लीफ. पहले तो ये अटैच होगा ट्री के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये लीव्स डिटैच हो जाते हैं मेन प्लांट बॉडी से, they come and fall on the ground, और ये जैसे ही they come in contact with the soil, the new plantlets are formed from the crenate margins of the bryophyllum, and like this the new plantlet is formed by the bryophyllum leaf. Same with the calanco. Here यहाँ पर भी margins present है, जहाँ से here they give rise to a new plant body. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव टेकन इज ऑफ द स्टेम, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ट्यूबर का, पोटैटो. पोटैटो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस दिखाई देती है तो यहाँ पर दे जर्मिनेट, एंड द जर्मिनेशन इज बाय द हेल्प ऑफ द नोड्स. ये यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पोटैटोज के ऊपर. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन नजर आती है तो न्यू प्लांट इट इज गोइंग टू अराइज बाय द हेल्प ऑफ द आई, और यू कैन सी द नोड्स लाइक स्ट्रक्चर. और यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे स्टेम का, दैट इज द हेयर दैट इज टर्मरिक, हल्दी, जहाँ पर आपको नोड्स नजर आएंगे, नोड्स के ऊपर बर्ड्स नजर आएंगे, और जैसी फेवरेबल कंडीशन नजर आएगी तो दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज अ न्यू प्लांट, इट इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम दीज. अब यहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर हम आर्टिफिशियल मेथड से करें, ओके, इट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और यहाँ पर हम एक ही प्लांट से न्यू प्लांट अराइज हो रहे हैं कर रहे हैं, तो हियर दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट बॉडी, क्योंकि एक ही पेरेंट बॉडी है और उसी पेरेंट बॉडी के पार्ट से न्यू प्लांट अराइज हो रहा है. सो दे आर गोइंग टू बी द ऑफस्प्रिंग्स, दे आर गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो अगर आर्टिफिशियल मेथड से हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हैं तो इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर. सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द कटिंग्स. जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है बोगेन विला का. यहाँ पर बोगेन विला हमने ये प्लांट लिया है, और हियर इफ वी डू अ कट, लेकिन जो भी हमने कट किया है वहाँ पर हमें बर्ड्स, नोट्स पर बर्ड्स होना इम्पोर्टेंट है, देन ओनली इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, अदरवाइज अ न्यू प्लांट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस. सो हियर वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ अ बोगेन विला, और इसी बोगेनविला के कट को, इसी बोगेनविला के कट को हमें सो कर देना है सॉइल में, एंड लाइक दिस रूट्स आर गोइंग टू अराइज बाय दीज कट. जो भी कट होगा वो स्लांट कट होगा, और जिसकी वजह से हम एक न्यू प्लांट को अराइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम कटिंग ओनली. So here we have taken an example of a bougainvillea, and here यहाँ पर बर्ड इट इज इम्पोर्टेंट. जो भी हम प्लांट का कट लेते हैं द बर्ड मे बी वन और मोर बर्ड्स इट इज बी यूज्ड. तो रोज है, बोगेनविला है, द प्रोपिगेशन इज बाय द हेल्प ऑफ द कटिंग. ओके, लीफ कटिंग के थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर सकते हैं, लाइक इन द सेंस वीरिया. हियर इन द सेंस वीरिया, हियर वी रिक्वायर द बर्ड्स में बी वन और टू बर्ड should be present in it. और फिर रूट कटिंग में है एग्जाम्पल लेते हैं लाइक द ब्लैकबेरी. ओके, सो हियर बाय द हेल्प ऑफ द कटिंग द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इट इज बीइंग डन. नेक्स्ट टाइप का वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर्टिफिशियल टाइप का, दैट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में हम लेने वाले हैं यहाँ पर दो प्लांट्स. Here in this vegetative propagation we are going to use the two
प्लांट्स, लेकिन एक यहाँ पर जो टू प्लांट्स ले रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट? सपोज यहाँ पर ये जो प्लांट है इट इज हैविंग अ हाई यील्ड, और ये जो दूसरा प्लांट है इट इज हैविंग अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और अगर हम इन दोनों को अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हियर इट इज ऑल टुगेदर गोइंग टू बिकम अ ओनली वन प्लांट विच इज हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे कि इसमें एक ही प्लांट में नजर आएंगे। So like this, here we are going to get two benefits from a single plant. So यहाँ पर here we have taken the stalk, which is going to be in the lower part, or here the upper part it is called a sign, और sign ही है जिसके पास आपको birds नजर आएंगे. So here the sign, it should have the birds here. So two parts of the plant are being joined together and it will become a one plant, or the plant which is having a bud is called as scion, and the plant which is having the roots it is called as stalk. तो इसको हम grafting बुलाते हैं. So this is how originally it looks like, और फिर उसका बैंडेड करना important है ताकि जो टिश्यूज हों वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, और जो भी न्यूट्रिशन का सप्लाई है वो ऑल टुगेदर दोनों ही पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देखने को मिले. और यहाँ पर हम नजर आता है here the next diagram is of bud grafting. बर्ड ग्राफ्टिंग में किया क्या जाता है, यहाँ पर हम लेने वाले हैं टू प्लांट्स. ओके, सो यहाँ पर हम ये जो टू प्लांट्स लेने वाले हैं, फर्स्ट सपोज दिस इज द वन प्लांट जहाँ पर बर्ड प्रेजेंट है. वी आर गोइंग टू रिमूव द बर्ड from this one plant and is going to be inserted into the another plant. ये हमने लिया है दूसरा प्लांट जिसमें हमने एक तरीके का टी शेप कट किया है. वी हैव डन अ काइंड ऑफ अ टी शेप कट ताकि ये जो बर्ड है वो टी शेप कट में इंसर्ट हो जाए. एंड एज वी हैव इंसर्टेड द बर्ड ऑफ वन प्लांट to the another plant T-shaped cut, it as it is inserted, then a bandaging is done, and likewise here the bud it is being fixed, और फिर इस तरीके से बर्ड ग्राफ्टिंग किया जाता है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बर्ड को किसी भी स्टॉक जिसके पास रूट्स है हम उसको स्टॉक बुलाएंगे, किसी भी स्टॉक के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं. सो हियर दिस टाइप ऑफ बर्ड ग्राफ्टिंग is mainly seen in like the apple, rose or the pear. Okay, so this is how originally it looks like, a T-shaped cut in the stalk, and here the new plant bud it is being inserted in the T-shaped cut. अब नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर. ये बहुत ही मॉडर्न मेथड है असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन का. यहाँ पर हम कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं और उससे न्यू प्लांट्स अराइज करेंगे. So in this tissue culture we do not require seed, we are not dependent on climatic conditions, we are not dependent on seasons. So first what we are going to do is we can take any cell, we can take any cell. Okay, it can be from the leaf, it can be from the root, okay, it can be from the it can be from the stem, कहीं से भी हम सेल ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पर लिया है लीफ का सेल. सो दिस इज अ लीफ एंड वी हैव टेकन द सेल ऑफ द लीफ, और हमने उसको डाल दिया है अगार मीडियम में. व्हाट एग्जैक्टली दिस अगार मीडियम इज? दिस अगार मीडियम, it is a medium which is having all the nutritional value which are required for the growth of the cell. तो यहाँ पर जैसे ही लीफ के सेल को अगार मीडियम में डालते हैं, so it absorbs the agar all the nutrition, and now it is not more the leaf cell, now it has become a callus cell. अब ये callus cell क्या है? Callus cell हम इसको एक undifferentiated mass of cell बुलाते हैं. ये undifferentiated mass of cell एक ऐसा सेल है जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है. मतलब ये पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट के सेल में कन्वर्ट हो सकता है. ये एक तरीके का स्टेम सेल है. तो लाइक इन एनिमल वी हैव अ स्टेम सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे ये कैलस है जो कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है. तो अब ये लीफ का सेल नहीं रहा, वो अभी कैलस हो चुका है. सो हम जो भी सेल लेते हैं प्लांट से, जो कि हम अगार मीडियम में डालेंगे उसको हम एक्स प्लांट करके बुलाएंगे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज, ये हमने अगार मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब हम डालेंगे कुछ हार्मोन्स जैसे कि हम डालेंगे ऑक्सिन और साइटोकाइन, एंड दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द टिश्यू कल्चर. सो यहाँ पर जैसे ही हम ऑक्सिन डालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा शूट का, और जैसे हम साइटोकाइनिन डालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा रूट का. तो यहाँ पर हियर शूट
and root. Both formation can take place because of the hormones like shoot stimulating hormone auxin or root stimulating hormone, that is the cytokinin. And likewise a new plant it arises. So पहले तो इसको हम lab medium में ही रखेंगे in the laboratory. Later it has been shifted to the field here. So that is how the number of plantlets can be produced in a very short time, and which are going to be identical to their parent cells. It means they are going to be genetically identical and morphologically identical to the parent body. So अगर कोई भी nutritional value present है parents में तो आपको वो offspring में नजर आएंगे, और वो जो offspring का number होगा वो बहुत ही abundant number में होगा. So this is how जो भी rare species है plants की, तो हम इस तरीके से उनको species को rare करने से बचा सकते हैं, and it is very much beneficial in today's world. Next, we are going to study is about the sexual reproduction. Sexual reproduction में यहाँ पर दो gametes की ज़रूरत है. There are formation of two different gametes and the fusion of the gametes are required. तो ये जो gametes का formation है, gametes का formation करने वाला एक ही part of the plant है, that is the flower. So this flower, it is the one who is going to produce the gametes. Male gametes हैं, female gametes हैं, तो ये flowers ही produce करेंगे. So here the flowers, these are the reproductive structure of the plant. So first formation important है gametes का, फिर fusion important है gametes का. So सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज के पहले एक और फेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, और यू कैन सी द वेजिटेटिव फेज. और उसके बाद आपको रिप्रोडक्टिव फेज नजर आएगा जहाँ पर आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन नजर आएगा, और ये आपको नजर आएगा हायर प्लांट्स में, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हैं, ये हायर प्लांट्स हैं जिसमें आपको ये सब नजर आएगा. And here further the flower, we have already said it is a reproductive structure. और यहाँ पर ये जो फ्लावर है, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं. सो जो फ्लावर्स हैं ये होता है डिप्लॉयड, and it is later going to do meiosis type of cell division. meiosis type के cell division में जो chromosomes number है हमेशा half हो जाते हैं. So यहाँ पर ये flower जैसे ही meiosis करेगा chromosome number half हो जाएंगे, तो जो gametes produce होंगे वो हमेशा ही haploid होंगे. They are always going to be haploid. So flowers they are diploid, and the gametes which are produced by the meiosis they are going to be haploid. अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर अब मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है. बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ये दोनों ही तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पर इन द फ्लावर देयर आर टोटल 4 डिफरेंट वर्ल्स, वो है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. फर्दर इफ वी सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पर चारों के चारों वर्ल्स दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज द कार्पेल. ये जो पूरा येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कार्पल. हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बुलाएंगे, हम इसको गाइनोशियम बुलाएंगे, पिस्टल बुलाएंगे, सारे के सारे नाम इसी के ही हैं. सो दिस येलो बॉडीड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज कार्पल, पिस्टल, ओके, गाइनोशियम बुला सकते हैं आप इसको. सो इट इज हैविंग 3 पार्ट. सबसे पहले आता है स्टिग्मा, सेकेंड वाला आ जाता है फर्स्ट. ये जो स्टिग्मा है इट इज स्टिकी. स्टिकी होना इम्पोर्टेंट है बिकॉज एज स्टिग्मा इट इज स्टिकी, इट हेल्प्स टू अटैच द पोलन ग्रेन्स. जो ड्राई लाइट वेटेड पोलन ग्रेन्स होंगे दे आर इजीली अटैच्ड ऑन दिस स्टिकी स्टिग्मा. ओके, और एक तरीके का इनके पास शुगरी फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द स्टाइल. ये जो स्टाइल है इट इज इट मे बी हॉलो, कहीं कहीं फ्लावर्स में ये हॉलो होगा, कहीं कहीं फ्लावर्स में ये हॉलो नहीं भी हो सकता है. सो डिपेंड्स. और फिर थर्ड पार्ट आ जाता है दैट इज द ओवरी. ये जो ओवरी है उसके अंदर आपको नजर आएगा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको नजर आता है दैट इज द एग. सो जो भी एग है आपको नजर आएगा ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, और ओवरी इट इज द पार्ट ऑफ द कार्पेल. अब नेक्स्ट आता है दैट इज अनदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन्स. अब याद आ जाता है दैट इज स्टेमन्स. यहाँ पर ये जो स्टेमन्स प्रेजेंट है इट इज हैविंग 2 पार्ट्स. पहला आ जाता है एंथर, और फिर ये दूसरा आ जाता है लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. सो दोनों के दोनों मिलकर ये बन जाते हैं स्टेमन्स.
इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जब बहुत सारे स्टेमन्स हो तो हम उनको सबको बोलेंगे दैट इज़ द एंड्रोशियम। अब तीसरा आ जाता है वर्ल, दैट इज़ द कोरोला। कोरोला दे आर, इट मीन्स members। यहाँ पर corolla, it may number maybe 1 2 or many, it depends upon the species which is present। तो ये पेटल है, ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है। तो whatever the number of petals may be, all together they are called as corolla। So in number of species they are brightly colored so that they can attract the insects, they can attract the agents, the biotic agents for the pollination। So ये एक तरीके के अट्रैक्टिव होंगे, कलरफुल होंगे, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और फिर बाद में नेक्स्ट वाला वर्ल आ जाता है, दैट इज द कैलिक्स। कैलिक्स जो भी मेंबर्स होंगे हम उसको बुलाएंगे सेपल्स। ओके, सो सबसे पहली बात, मेन फंक्शन यहाँ पर कैलिक्स का ये है कि जब भी फ्लावर बर्ड कंडीशन में होगा तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के टाइम पे कैलिक्स ही होते हैं जो कि फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड लेटर एज द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पर एज दे आर इन ग्रीन इन कलर सो दे आर द वन हु कैन डू फोटोसिंथेसिस। और फिर इस तरीके से यहाँ पर आपको ये 4 वर्ल्ड्स नजर आएंगे किसी भी फ्लावर में, और ये चारों के चारों वर्ल्स आपको नजर आएंगे एक चीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। तो ये रिसेप्टिकल है जिसके ऊपर चारों के चारों वर्ल्स दे आर बीन प्रेजेंट। सो ऑल द वर्ल्स here they are being shown in this figure of the typical flower structure। अब यहाँ पर हमने जो फ्लावर का नाम लिया है हमने उसको बोला है स्पोरोफाइट। और ये जो फ्लावर है ये डिप्लॉयड है, ये प्रीडोमिनेंट पार्ट है किसी भी प्लांट का, एंजियोस्पर्म प्लांट का। और फिर ये मियोसिस करेंगे तभी हप्लॉइड स्पोर्स या तो फिर हप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। सो फ्लावर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे आर द वन हु आर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्लावर दे आर गोइंग टू डू मियोसिस एंड देन हप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस। और जैसे ही गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इनका फ्यूजन होना इम्पॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर हेयर एज दे आर बीन फ्यूज, सपोज ये मेल गैमेट है, ओके और ये फीमेल गैमेट है, दिस इज द फीमेल गैमेट। सो इनका फ्यूजन होना इम्पॉर्टेंट है तभी यहाँ पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो अगर ये हप्लॉइड है ये भी हप्लॉइड है तो ये हो जाएगा डिप्लॉयड। सो द जाइगोट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। और यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग का ग्रोथ होगा जाइगोट के थ्रू, दे आर गोइंग टू बी डिसिमिलर देन दी पेरेंट्स, क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है मेल गैमेट का अलग है फीमेल गैमेट का अलग है, एंड these gametes are different, so likewise the offsprings which they are going to produce they are going to have some variations। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, in the prophase 1 you will see there is a crossing over taking place, और crossing over के वजह से ही यहाँ पर variations create होंगी, और variation होना बहुत important है due to which you will see there is evolution of species। और evolution species में होना important है, why? क्योंकि environment हमेशा ही change होते रहते हैं। so जैसे ही environment में कुछ change आता है और variations भी आते हैं तो the organism it is able to adapt to the changing environment, and then only he is able to survive in this changing environment। so सबसे पहले gametes का formation होगा, fusion होगा। so जो fusion of male और female gametes है उसको हम प्रोसेस को बुलाते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट में नजर आएगा आपको ग्रोथ, एंड हियर यू कैन सी द एम्ब्रियो इज बीन फॉर्म। तो ये जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हियर दे आर हैविंग सम इवेंट जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दैट इज एंड्रोशियम। सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेमेंस होंगे जिनको हम बुलाएंगे एंड्रोशियम। सो जो एक स्टेमन है, ओके सो जो मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम है उसको बुलाएंगे स्टेमन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन। ओके सो यहाँ पर जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है you can see it is having the filament, they are having the long filament like structure, and here
लेटर दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और फिर बाद में आ जाता है एंथर। और ये जो एंथर है ये एक लोब है और ये दो लोब है, सपोज दिस इज वन लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब, ये दोनों के दोनों लोब अटैच हैं बाय द कनेक्टिव। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ जाती हैं स्टेमेंस में, एक तो फिलामेंट, दूसरा कनेक्टिव, और फिर तीसरा आ जाता है दैट इज द एंथर। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर इट लुक्स लाइक। अब यहाँ पर हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का। हमने तीन चीज़ें पढ़ी, फिलामेंट, एंथर, और फिर एंथर ये जो बायलोब्ड है उसको कनेक्ट करने वाला दैट इज द कनेक्टिव। अगर हम इसका टीएस लेते हैं, अगर हम इसका ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर का, यहाँ पर आपको नजर आएगा दैट बोथ द लोब, दिस इज द वन लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब। एंथर में दो लोब्स होने के कारण हम उसको डाइथीकस बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हर एक लोब में आपको दो sac like structure नजर आएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, टोटल फोर सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो एक लोब में दो पोलन सैक हैं। सो हियर पोलन सैक ही है जहाँ पर एंड यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज हाउ the pollen grains, they are being formed inside the pollen sac, and here the structure of the anther look like। तो पहले तो anthers immature होंगे, later वो mature होंगे, और mature के टाइम पे ही pollen grains का formation होगा। So जब anthers immature होते हैं तब यहाँ पर tissues होंगे like parenchyma tissue, और anthers में जो सबसे बाहरी layer होगी हम उसको बुलाएंगे that is epidermis, और ये anthers diathecous होते हैं, और उसके अंदर दो sac like structure नजर आएंगे, those are called as पोलन सैक। और यहाँ पर चार सैक लाइक स्ट्रक्चर, चार पोलन सैक लाइक स्ट्रक्चर, हम उसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बुलाते हैं। ओके, और फिर यहीं ये जो पैरेन्काइमेटियस टिश्यूज हैं जो कि आपको इमेच्योर एंथर में नजर आएगा, वो आगे जाके और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ग्रो करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ द टिश्यूज दे आर बीन ग्रोइंग इन द एंथर। सो पहले हम लेंगे इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर में नजर आएंगे आपको टिश्यूज, जैसे कि पैरेन्काइमा टिश्यू, वो अंदर ही साइड होंगे, और सबसे बाहर जो टिश्यूज नजर आएंगे हम उसको बुलाते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन्स बाहर में, सो जो भी लेयर बाहर साइड है तो उसको बुलाएंगे एपिडर्मिस, जो आउटर साइड है, और अंदर के जो सेल्स हैं उसको बुलाएंगे पैरेन्काइमा टिश्यू। अब यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू में ग्रोथ नजर आएगा, डिफ्रेंसिएशन नजर आएगा। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू को हमने हाइपोडर्मल सेल्स बुलाया है। एपिडर्मिस सेल्स के नीचे जो सेल्स हैं हम उसको हाइपोडर्मल सेल्स बुलाएंगे, जो कि आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर्किपोरियल सेल्स में कन्वर्ट होंगे। अब मतलब हम एपिडर्मिस के नीचे आर्चिपोरियल सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये आर्चिपोरियल सेल्स आगे और भी ज़्यादा डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का और प्राइमरी पैराइटल सेल्स का। सो यहाँ पर दो तरीके के सेल्स बने हैं, एक तो स्पोरोजिनस सेल्स बने हैं और दूसरे प्राइमरी पैराइटल सेल्स। इसका मतलब है अभी भी सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, फिर आएगा प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और फिर तीसरा जो अंदर होगा दैट इज गोइंग टू बी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, इसका मतलब है आगे यहाँ पर sporogenous cells they are going to convert into sporogenous tissue, प्राइमरी पैराइटल सेल्स दे आर गोइंग टू बिकम प्राइमरी सेल्स। मतलब अभी भी जो एंथर है बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, फिर पैराइटल सेल, और फिर स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज दे आर अगेन गोइंग टू डिवेलप एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये जो पैराइटल सेल्स है दे आर गोइंग टू फॉर्म द एंथर वॉल। मतलब अभी यहाँ पर जो एंथर है सबसे बाहरी लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, देन एंथर वॉल, एंड देन कम्स द माइक्रोस्पोर टेट्राड। Okay, so this is how first we'll study about the wall of the mature anther। मतलब यहाँ पर जो भी wall present है anther के, ये total 4 layers हैं। So first if we see the layers of the anther wall, फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहरी प्रेजेंट दैट इज द एपिडर्मिस। उसके नीचे आती है दैट इज एंडोथीसियम, सो द सेकेंड लेयर इज द एंडोथीसियम, थर्ड इज द मिडल लेयर, एंड द फोर्थ इज द टेप्टम। ये टोटल 4 आउटर लेयर प्रेजेंट है एंथर्स के। So here remember the 4 layers of the anther, and later here, या तो अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला डायग्राम भी here it is there to understand you about the 4 layers of the anther। So सबसे पहले यहाँ पर जो लेयर आती है that is the epidermis।
ओके। यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस इट इज़ आउटर मोस्ट, ये बाहरी होने के कारण ये बाहर साइड है, तो इसका काम होगा ही प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर जो भी सेल्स नज़र आते हैं वो सारे के सारे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये आउटर मोस्ट हैं जिनका काम है प्रोटेक्शन करना। अब आ जाता है एंडोथीसियम। तो यहाँ पर एंडोथीसियम में आपको जो भी डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन kind of structure which you can see here, you can see the dark green kind of structure. ये रेडियली अरेंज्ड सेल्स हैं जो फाइब्रस सेल्स हैं। ओके, सो हम इसको बुलाएंगे एंडोथीसियम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब जो फोर्थ लेयर आ जाती है, दोज लेयर इट इज, यू कैन सी इट इज इन ऑरेंज कलर। यहाँ पर हम इसको बुलाएंगे मिडिल लेयर। ऑरेंज कलर लेयर जो है एक से दो लेयर नजर आएगी, और जब फॉर्मेशन हो जाता है पोलन ग्रेन्स का, यही मिडिल लेयर जो रप्चर हो जाएगी और पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। इसी एंथर्स के अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। सो मिडिल लेयर इट इज अ वन हु गेट रप्चर्ड। तो मिडिल लेयर यू कैन सी इट इज अ ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर, एक से दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है द फोर्थ लेयर, दैट इज अ टेप्टन। ये जो फोर्थ लेयर प्रेजेंट है दैट इज द येलो वन। ये जो येलो वन लेयर है दैट इज अ टेप्टम। ओके, और उसके अंदर ही है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज आर द वन हु इज गोइंग टू फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू ग्रो करेंगे और फिर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट देखने मिल रहा है जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। ओके, दे आर द वन हु इज गोइंग टू बिकम द पोलन ग्रेन्स। तो ये डेवलपमेंट कैसे होगा, कोई न्यूट्रिशन देगा तभी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो येलो कलर सेल्स हैं टेप्टम, दिस इज द वन इज गोइंग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड ड्यू टू विच स्पोरोजिनस टिश्यू विल कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन्स। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम बुलाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्योंकि यही हैं जो कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कराएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों लेयर्स के बारे में पढ़ा। दैट इज द फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, फिर बाद में आ जाती है दैट इज द एंडोथीसियम, फिर आ जाती है मिडिल लेयर, एंड देन कम्स द टेप्टम, एंड देन कम्स द स्पोरोजिनस tissue. So here again you can see in this diagram, the same diagram it is present here also. सबसे बाहरी आती है that is the epidermis, फिर बाद में आ जाती है that is the endothelium, फिर बाद में आ जाती है दो से तीन लेयर that is the middle layer, और फिर बाद में ये जो लेयर है that is the टेप्टम, और फिर इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको ही हम मदर हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल बुला रहे हैं, जो कि here it is the one who is going to produce the pollen grains. So here these are the four layers or walls of the anther which we have studied here. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस। तो हियर आल्सो यू कैन सी द सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने ये एंथर लिया है, टीएस लिया है एंथर का, जहाँ पर ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं हम इसको बुला रहे हैं पोलन ग्रेन्स, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यूज बना चुके हैं पोलन ग्रेन्स। Okay, so sporogenous tissue it has form, so here first of all ये सपोज हमने ले लिया है माइक्रोस दैट इज अ पोलन मदर सेल, और यू कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज अ स्पोरोजेनस टिश्यू, हाउ ये ब्लू वाला आप समझ लीजिए, ये जो ब्लू वाला जो भी पार्ट है ये सारे के सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। अब ये करेंगे क्या, तो ये करने वाले हैं दैट इज दीज आर द सेल, दीज आर द स्पोरोजेनस tissues, or you can say microspore mother cell, they are the one who are going to do the meiosis। ये 3D स्ट्रक्चर है। meiosis मतलब कि यहाँ पर meiosis करें तो मतलब यहाँ पर 4 सेल्स फॉर्म होंगे, कितने होंगे, 4 सेल्स फॉर्म, और फिर वो बाद में एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और टोटल पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। तो मतलब यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, वो मियोसिस करेंगे तब जाके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। सो जो पोलन मदर सेल्स हैं या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे, लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स है दे आर 4 ऑल आर गोइंग टू बी हप्लॉयड।
ये चारों के चारों ही haploid होंगे. So we can see that there are 4 haploid cells are produced, और ये चारों के चारों 4 haploid cells हम इसको बुलाएंगे, these are going to be the pollen grains. So pollen grains are formed by the help of meiosis from the microspore mother cell, or you can see the sporogenous tissue. You can see by the sporogenous tissue. So this is how the pollen grains they are being formed. So माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे और 4 हप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे. दोज आर द पोलन ग्रेन्स. अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ेंगे. माइक्रोस्पोर का मतलब ही है पोलन ग्रेन्स. अब कहीं कहीं स्पीसीज जो एंजियोस्पर्म की है, कहीं कहीं पोलन ग्रेन्स आपको सॉफ्ट नजर आएंगे, स्मूथ आई मीन लेयर नजर आएगा, कहीं कहीं स्पाइनी लेयर नजर आएगा. So these are the different patterns seen in the pollen grain. So different pattern, these are the characteristic features of their species. तो अलग अलग species के अलग अलग structures नजर आएगा pollen grains का. कोई smooth होंगे, कोई spiny surface होगा. So this is a typical structure of the pollen grain. यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो पोलन ग्रेन का, सबसे पहले यहाँ पर ये नॉन मोटाइल है क्योंकि कोई फ्लैजिला नहीं है, ये हप्लॉइड है, ये सिंगल सेल है और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में. और यहाँ पर आपको 2 लेयर्स नजर आएंगी पोलन ग्रेन्स में. यहाँ पर ये जो 2 लेयर्स प्रेजेंट है, सबसे बाहरी लेयर it is called as exine and the innermost it is called as intine. These are the 2 layers which are protecting the pollen grain. So altogether these both the layer it is called as sporodome. इन दोनों लेयर को हम बुलाते हैं that is the sporodome. So intine and exine all together we call them, this is the sporodome layer. Okay, so सबसे strongest वाली होती है exine. Okay, so यहाँ पर first we will study about the exine layer which is the strongest one. ये outermost है, thick है और ये complex है, non biodegradable है, and here it is made up of sporopollenin. This exine, because of this exine the pollens are able to survive in unfavorable condition. चाहे climatic condition कैसे भी हो, चाहे high temperature हो, low temperature हो, acidic condition हो, alkaline हो, कोई भी pH हो, okay, कोई भी humidity हो. So the exine is the one who is protecting the pollen grains from the adverse, from the unfavorable condition. So exine is the one who is protecting the pollen grain in any condition. Why? Because exine it is made up of the sporopollenin. Okay, और यहाँ पर जो pattern है it depends upon the characteristic of the species और chemicals को भी resistant है ये exine. अब यहाँ पर जिस जिस जगहों पर exine नहीं है, the places where the exine it is absent, these places are called as germ pore. जहाँ जहाँ पर exine नहीं है हम उसको बुलाएंगे germ pore. germ pore ही ऐसी place है जहाँ से pollen tube का formation start होगा. So here the germ pore they are being present in the pollen grains. Okay, and here at that place only intine is present and exine it is absent. So this is how the germ pore they are present on the pollen grains. And next comes the intine part. This intine it is very thin. यहाँ पर here there is a kind of a mistake. यहाँ पर intine होना चाहिए था, exine नहीं. This is intine. Intine जो है यहाँ पर it is a very thin. Intine where it is present is thin and intine is the one who is present near the germ pore. Okay, और फिर इस तरीके से यहाँ पर pollen tube का formation जो है germ pore के through ही form होगा. So this is the types 2 layers present in the pollen grains. And the intine they are made up of cellulose and the pectin. Next is about the pollen viability. Now what is this pollen viability? The time from where the pollens were matured and they were dispersed in the environment. तो जब वो form हुए हैं, the time from where they were formed and till the time they are able to produce the pollen tube. मतलब कि कितने समय तक वो सरवाइव कर सकते हैं, कितने समय के अंदर अंदर वो जर्मिनेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलन वायबिलिटी. मतलब कितने समय तक वो फंक्शनल रह सकते हैं जब वो फॉर्म हुए हैं. सो दैट इज द वायबिलिटी. अब जैसे कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखा रहा है पोलन ग्रेन्स में से, तो सो दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी. कितने समय के अंदर अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, वायबल रह सकते हैं और फंक्शनल कब तक रह सकते हैं.
So this pollen viability, it is also dependent on some factors like the environmental condition है, temperature है, humidity है, इन condition के ऊपर भी pollen viability dependent करती है. तो we have taken an example of a rice and wheat जिनकी pollen viability 30 minutes है, मतलब 30 minutes के अंदर अंदर उनको यहाँ पर here they have to stick on the stigma, otherwise the viability it is going to get lost. बट कुछ है मेंबर्स ऑफ फैमिली जिसके सोलेनेसी, रोसेसी और लेग्यूमिनेसी जिनकी वायबिलिटी इट लॉस्ट फॉर मंथ्स ऑल्सो. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, हाउ द मेल गैमेटोफाइट इट इज गोइंग टू फॉर्म. So सबसे पहले हमने लिया है that is the structure of the pollen grain. So here we have taken the typical structure of the pollen grain. ये जो pollen grain है इसके पास एक nucleus है, layers हैं, exine है, intine है, cytoplasm है, सब कुछ present है. This is the typical structure of the pollen grain. Okay. So यहाँ पर now what is going to happen is ये जो nucleus present है now it is going to do a kind of माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मतलब माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन में से एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों सेल्स हैं both are unequal. One is going to be larger and one is going to be the smaller cell. तो जो smaller cell हम उसको बुलाएंगे generative cell और जो larger cell हम उसको बुलाएंगे that is the vegetative cell. Okay, so larger cell is that is vegetative cell and the smaller cell is called as generative cell. Now एक माइटोटिक डिवीजन हो चुका है. अब यहाँ पर दूसरा माइटोटिक डिवीजन देखने मिलेगा और वो भी देखने मिलेगा जनरेटिव सेल में. तो सबसे पहले जैसे ही जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले वो अटैच रहेगा और फिर धीरे धीरे इट इज गोइंग टू कम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. एंड नाउ this generative cell it is going to float in the cytoplasm. अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है now it is going to change its position. ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है now it will come into the tip of the pollen tube. यहाँ पर this is a tube nucleus which is coming to the tip of the pollen tube. तो ये हम इसको tube nucleus भी बुलाते हैं, इसको vegetative cell भी बुलाते हैं. और जो दूसरा था जो कि float कर रहा था that is called a generative cell. Now slowly what is going to happen is this generative cell is the one who is going to do mitotic division. अब ये second mitotic division है जो कि produce करेगा दो male gamete cells. So here the two male gamete cells are being produced. तो ये रहा एक tube nucleus या तो vegetative cell, vegetative nucleus और ये दूसरा है that is the generative nucleus जिसने divide किया और two male gamete cells में form हो चुका है. So this is how now the three nucleus are present in this pollen tube. And here this is how the male gamete it is formed in the pollen grains. So first pollen grains ही हैं जो कि male gamete का फॉर्मेशन करेंगे. सो पोलन ग्रेन्स करेंगे माइटोटिक डिवीजन पहले जो कि फॉर्म करेंगे वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल को. वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल है, जेनरेटिव सेल ये स्मॉलर सेल है. वेजिटेटिव सेल इट इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर न्यूक्लियस और जेनरेटिव सेल स्लोली स्लोली फ्लोट करेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में. और फिर दिस इज हाउ दिस here you can see another diagram in which they have shown. Again they have explained about the pollen mother cell that is a sporogenous tissue or you can say microspore mother cell. This is here this I can show you wait a minute. This diagram it is showing the sporogenous tissue cell. ओके द माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि करेगा मियोसिस. जैसे ये मियोसिस करेगा तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड पोलन्स फॉर्म होंगे, पोलन ग्रेन्स, और बाद में वो डिटैच हो जाएंगे. और ये हमने अगर एक लिया है दिस इज द वन पोलन ग्रेन. ये वन पोलन ग्रेन है जिसके पास एक न्यूक्लियस था उसने डिवाइड किया और यहाँ पर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ. एक होगा जनरेटिव न्यूक्लियस दूसरा होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या तो फिर ट्यूब न्यूक्लियस. और यहाँ पर ये ही है जनरेटिव सेल जो कि फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा और यहाँ पर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. दो male gametes they are being formed by the generative cell. So this is how here the male gametes are formed inside a pollen grain. So this structure also explain about the formation of the gametogenesis. So next is about the female reproductive whorl, that is the pistil, that is the gynoecium. Here the gynoecium
अब यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे गाइनोशियम के, हम उसको कार्पेल बुलाएंगे या तो फिर पिस्टल बुलाएंगे. So this is the typical structure of the gynoecium. ओके, दैट इज अ कार्पेल. ये हमने एक ही कार्पेल लिया है, बहुत सारे कार्पेल होते, बहुत सारे पिस्टल होते, तो हम उसको गाइनोशियम बुलाते हैं. तो यहाँ पर हियर इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट, यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है स्टिग्मा. द topmost part is a stigma which is sticky, okay, and which always produces sugary kind of secretion. दूसरा आ जाता है स्टाइल, एंड तीसरा आ जाता है द ओवरी. तीसरा आता है ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको नजर आएंगे ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर आपको नजर आते हैं, दैट इज द ओव्यूल. सो दिस इज हाउ the structure of the female reproductive organ look like. So ये stigma, style, and this is ovary which is having the ovules present in it. So और ovules के अंदर आपको नजर आएंगे egg. So यहाँ पर जो भी present होगा, these inside is the egg. यहाँ पर नजर आएंगे आपको eggs नजर आएंगे. So this remember what is present inside. तो यहाँ पर ovary है, ovary के अंदर ovule, ovule के अंदर आ जाता है, that is the egg. ओके, सो यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ गायनोशियम है उसको कार्पल बुलाएंगे. अब यहाँ पर जो कार्पल्स हैं कभी कभी फ्यूज्ड होंगे, कभी कभी फ्री होंगे, अब डिपेंड ऑन द स्पीसीज. तो यहाँ पर द फर्स्ट डायग्राम इफ यू विल सी, ऑल दीज आर सेपरेटेड कार्पल. ये सारे के सारे सेपरेटेड है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से. ओके, तो हम इसको बुलाएंगे अपोकार्पस. लेकिन यहाँ पर ये जो तीन कार्पल है तीनों के तीनों फ्यूज्ड हैं, तो हम फ्यूज्ड बुलाएंगे, तो इनको बुलाएंगे सिनकार्पस. तो यहाँ पर दो तरीके के कार्पल्स नजर आते हैं, अपोकार्पस और द सिनकार्पस. और यही कार्पल्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये है ओव्यूल्स. दीज आर द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर आपको नजर आएगा दैट इज द एग. ओके, एंड एग इज द वन व्हिच इज गोइंग टू गेट फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट. और फिर यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. ओके, यहाँ पर अब ओव्यूल्स द नंबर में बी 1 to many. If you see in the structure, this ovary, it is having number of ovules present in it. यहाँ पर भी देखिए, here you can see the ovules which are present inside the ovary. Okay, so these are the ovules. ये ovules से जो ovary में attached हैं, और ये attached हैं so that they can take all the nutrition, and here the development can take place. So ये ovules हैं. So this is how they are attached by the help of placenta to this ovary so that it can uptake the nutrition. So ovary के अंदर आपको नजर आएंगे, that is the सॉरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर एग आपको नजर आएगा. ओके, अगर यहाँ पर एक ही ओव्यूल है ओवरी के अंदर तो हम बुलाएंगे यूनिवोल्टाइन, और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर तो हम बुलाएंगे दैट इज मल्टी ओव्यूलेट. Uni-ovulate and the multi-ovulate. So you can see the examples. And now in the next slide, in the next video, we will study about the structure of the anatropous ovule. Thank you. Have a good day.